Today we shall start our new topic, that is accounting for debentures. ঋণপত্রের হিসাব নিকাশ. Only 5 marks is there in this chapter. 5 নম্বর মাত্র আছে. 4 marks for one sum and 1 marks for MCQ or SAQ. तो अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे जो हम लोग पढ़ के आए हैं, प्रीवियस जो लेसन्स है उसको याद कर लेते हैं. सो सोर्सेस ऑफ कैपिटल ऑफ कंपनी, देयर आर 3 सोर्सेस ऑफ कैपिटल ऑफ कंपनी. फर्स्ट सोर्स इज ओन कैपिटल, दैट इज निजस्व मूलधन. ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं. इशू ऑफ शेयर्स, वो इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर जो भी हो, इशू ऑफ शेयर्स हम लोग कर चुके हैं, वो है ओन कैपिटल. सेकेंड सोर्स ऑफ कैपिटल ऑफ कंपनी इज लोन कैपिटल by ऋण मूलधन. एंड थर्ड सोर्स ऑफ कैपिटल इज इंटरनल कैपिटल বা আভ্যন্তরীণ মূলধন. Now, what is internal capital? Internal capital is part of profit transferred to reserve is internal capital. हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किए थे, वहाँ पे हम लोग किए थे, देखो याद करो कि एक परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हम लोग जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर रहे थे. तो ये जो जनरल रिजर्व में पार्ट ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो रहा है, इसे हम लोग कहते हैं इंटरनल कैपिटल. क्योंकि अगर कंपनी को ज़रूरत है तो कंपनी क्या कर सकता है, कंपनी ये जो रिजर्व है इसको एज अ कैपिटल यूज़ कर सकते हैं. तो इसे हम लोग कहते हैं इंटरनल कैपिटल. नाउ द लोन कैपिटल. नाउ व्हाट इज लोन कैपिटल? Capital raises from outside source is called loan capital. Now, issue of equity share, preference share or internal capital, these are the inside source of the company. But if any company raises his fund from any outside source, that is called loan capital. From where company can raises this capital? Company can take loan from the bank. ব্যাংকের থেকে লোন নিতে পারে. Company can take loan from financial institutions. There are many private financial institutions and company can get loan from that institution. Number 3, public deposit. Public can deposit their money in company. That is also a source of loan capital. And last जो हम लोग का topic है वो है issue of debenture. Company can issue debentures and raise his loan capital from the outside source. ডিবেঞ্চারের বাংলা আমরা বলছি হচ্ছে ঋণপত্র. Now, this debentures has a fixed rate of interest. In case of share, we already say that in case of equity share, there are no fixed rate of dividend. But in case of preference share, there are fixed rate of dividend. In case of debenture also, there is fixed rate of interest. এখানে কিন্তু ডিবেঞ্চার্সের ক্ষেত্রে কিন্তু কি হয়, इंटरेस्टेर रेटটা फिक्स থাকে. इंटरेस्ट रेट ऑफ डिबेंचर्स फिक्स रहता है. सो ये जो इंटरेस्ट रेट फिक्स रहता है, इसलिए इसका दूसरा नाम है फिक्स्ड चार्ज्ड कैपिटल বা স্থির দাবিযুক্ত মূলধন. Now, what is debenture? Debenture is a document. Debenture is a document bearing seal of company by which company can raise its long-term capital. Okay? अच्छा, यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म कैपिटल लिखे हैं, लेकिन अगर डिबेंचर्स का जो टाइम पीरियड है वो 12 मंथ से लेस है तो उसे हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल नहीं कह सकते हैं. इन केस अगर ये डिबेंचर्स raise for more than 12 months, then it is called long term capital. তাহলে ঋণপত্র আমরা কাকে বলছি? এটি হলো কোম্পানি শিলমোহরযুক্ত একটি ঋণ স্বীকৃতির দলিল, যার মাধ্যমে কোম্পানি দীর্ঘমেয়াদী ঋণ সংগ্রহ করে. দ্যাট মিনস যে ডিবেঞ্চার হোল্ডার্স আর দ্য ক্রেডিটার্স অফ দ্য কোম্পানি. কোম্পানি হ্যাজ টু রিপে দেয়ার লোন আফটার আ সার্টেন পিরিয়ড. একটা নির্দিষ্ট সময় পরে কোম্পানিকে এই ডিবেঞ্চার হোল্ডারদের টাকা ফেরত দিতে হবে. সেই জন্য আমরা ডিবেঞ্চার হোল্ডার যারা তাদেরকে কিন্তু পাওনাদারও বলে থাকি. তো এবার আমরা চলে আসছি শেয়ার এবং ডিবেঞ্চারের মধ্যে পার্থক্য.
एक क्वेश्चन था, दिस क्वेश्चन डिबेंचर में नहीं आके शेयर में भी आ सकते हैं। जो हम लोग अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल किए थे वहां पे भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर, देखो फर्स्ट जो डिफरेंस है, शेयर इज द ओन कैपिटल ऑफ द कंपनी। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं द सोर्सेस ऑफ कैपिटल। शेयर इज द ओन कैपिटल ऑफ द कंपनी, बट ডিবেঞ্চার ইজ দ্য লোন ক্যাপিটাল অফ দ্য কোম্পানি। প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব মূলধন হচ্ছে শেয়ার এবং ডিবেঞ্চার হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের ঋণকৃত মূলধন। সেকেন্ড क्या है देखो, the shareholders are the owner of the company, মানে শেয়ার হোল্ডার মানে যারা শেয়ার কিনছে তারা কোম্পানির মালিক, বাট ডিবেঞ্চার হোল্ডার্স আর দ্য লেন্ডার্স অর ক্রেডিটর্স অফ দ্য কোম্পানি। ডিবেঞ্চার হোল্ডাররা কি হচ্ছে কোম্পানির পাওনাদার বা ঋণদাতা। 3 নম্বর পয়েন্ট কি, इशू ऑफ शेयर इज मैंडेटरी। कोई भी कंपनी हो, कंपनी होने के लिए शेयर इशू करना मैंडेटरी है, शेयर बिली करा बाध्यतामूलक। बट इशू ऑफ डिबेंचर इज नॉट मैंडेटरी। इफ कंपनी रिक्वायर्स मोर कैपिटल, कंपनी यदि आरो कैपिटलेर प्रयोजन হয়, in that case company can raise capital from the issue of debenture. So issue of debenture is not mandatory, ঋণপত্র বিলি করা বাধ্যতামূলক নয়। এবার আমরা চলে আসছি 4 নম্বর পয়েন্টে। অ্যাকর্ডিং টু কোম্পানিজ অ্যাক্ট 2013, issue of debentures at a discount is according to Companies Act 2013, issue of share at a discount is not permissible। हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, जब हम लोग इशू ऑफ शेयर किए थे वहाँ पे हम लोग बोल चुके हैं 2013 के जो कंपनीज एक्ट है वहाँ पे शेयर को डिस्काउंट में इशू नहीं किया जाता है। 2013 কোম্পানি আইন অনুসারে শেয়ার অবহারে বিলি করা যায় না, বাট ইস্যু অফ ডিবেঞ্চার অ্যাট এ ডিসকাউন্ট ইজ পারমিসেবল। डिस्काउंट माने 100 টাকা डिबेंचर के हम 90 টাকা 95 টাকা 95 रुपीज इसमें सेल कर सकते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं इशू ऑफ डिबेंचर एट ए डिस्काउंट। तो डिबेंचर অবহারে বিলি করা যায়, এটা আরেকটা পার্থক্য। নেক্সট, डिविडेंड इज पेड इफ कंपनी अर्न सफिशिएंट प्रॉफिट। हम लोग शेयर में पढ़ चुके थे, अगर कंपनी सफिशिएंट प्रॉफिट करते हैं तभी कंपनी ने इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देते हैं। बट इंटरेस्ट हैज़ टू बी पेड वेदर कंपनी अर्न्स प्रॉफिट और लॉस। देखो यहाँ पे 2 डिफरेंस हो गया, यहाँ पे डिविडेंड लिखा है, यहाँ पे इंटरेस्ट। मतलब डिबेंचर होल्डर्स जो है उसको इंटरेस्ट मिलता है और शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलते हैं। और दूसरा डिफरेंस क्या है, अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है तभी डिविडेंड शेयर होल्डर को मिलेगा, लेकिन प्रॉफिट हो या लॉस हो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड डिविडेंड इज অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন অফ প্রফিট। কোম্পানির লাভ বা ক্ষতি যাই হোক না কেন ঋণপত্রের উপর সুদ প্রদান করতে হয়। नंबर 6 पॉइंट क्या है, रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड इन केस ऑफ शेयर एक्सेप्ट रेफरेंस शेयर। हम लोग क्या जानते हैं, ओनली इन केस ऑफ रेफरेंस शेयर रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड, बट इन केस ऑफ इक्विटी शेयर देयर इज नो फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার ছাড়া লভ্যাংশের হার স্থির থাকে না। ইন কেস অফ ডিবেঞ্চার রেট অফ ইন্টারেস্ট ইজ ফিক্সড ইন কেস অফ ডিবেঞ্চার। ওকে, সুদের হার সবসময় ডিবেঞ্চারের ক্ষেত্রে স্থির থাকে। অ্যান্ড নাও দ্য লাস্ট पॉइंट, कैपिटल वैल्यू ऑफ शेयर इज नॉट रिडीम्ड बिफोर लिक्विडेशन। हम लोग जानते हैं इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर वो अलग है, लेकिन इन केस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल वैल्यू ऑफ शेयर is not refunded before liquidation। কোম্পানি অবসানের আগে শেয়ারের মূল্য ফেরত হয় না। বাট ইন কেস অফ डिबेंचर कैपिटल वैल्यू ऑफ डिबेंचर इज रिडीम्ड आफ्टर ए सर्टेन पीरियड। डिबेंचर जो है, जो डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पे लिखा रहता है कितने दिन के डिबेंचर्स है। और एक पॉइंट हमने लिखे नहीं है, शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेबल इनटू डिबेंचर। शेयर को डिबेंचर में कन्वर्ट किया नहीं जा सकता है, शेयर को डिबेंचर में क्या कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, बट डिबेंचर कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये पॉइंट हम लोग लिखे नहीं है, बहुत सारे पॉइंट है, उसमें से जो अच्छा पॉइंट है उसी को हम लोग दिखाए हैं।
तो ये था थियोरिटिकल पार्ट ऑफ द डिबेंचर्स।